Hello everyone. So I have just completed the editing of my first podcast. If you are seeking your career, outside India, like if you want to have your career settled in Japan, then this video is definitely for you. इसके अंदर मेंशन हर एक डिटेल आपके बहुत काम आने वाली है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने जिस भी फ्रेंड को ज़रूरत हो इस इन्फॉर्मेशन की उसके साथ ज़रूर शेयर करें. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं कैरियर रिलेटेड. थैंक यू. मतलब फिट ओके, चलो शुरू करते हैं. ओके So hello, hi everyone. This is the first episode we are recording here. I'm in India. Surinder is in Japan, and we both are going live to create some learnings for the aspirants who wants to settle abroad. So yeah, the conversation will be based on like how Surinder have channelized his career from India to Japan. How what are the challenges he faced? What are the key points every aspirant should know? That क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा मतलब वीज़ा प्रोसेस है या फिर वहाँ पे जॉब ढूंढने का क्या प्रोसेस है, वहाँ पे कैसे सेटल हो सकते हैं, क्या की चैलेंजेस फेस होते हैं, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इस कन्वर्सेशन में कवर करेंगे. इट इज़ नॉट लाइक एन प्रोफेशनल वेबिनार और एनी इवेंट लाइक दैट. इट इज़ जस्ट अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स. हम दोनों मतलब स्कूल फ्रेंड्स हैं. लाइक let me introduce myself. Recently I started my this YouTube channel and I want to add more learning to people's life. That is why I started this podcast series here. So yeah, let's introduce Surinder here. Surinder is one of my schoolmate, and he's a successful financial analyst working currently in Japan, and he had a great experience with finance and project management and all. So he will you share his experience with us that what are the things need to be done before going Japan. Okay. Hi Surinder. It's better if you introduce yourself from your end. Thank you so much, Mapsa. Kamagani, everyone. Yes. So currently I live in Japan, working for one of the global company in automobile as a project controller in the finance department. Before I joined this company, I did MBA from International University of Japan. So before that, in the past, I work as a software developer. So this is not a very professional. So we can talk in Hindi and English. Yes. Both is okay. हम हिंदी but- में बात करेंगे वैसे. So your next question, Mapsa. So let me give you a context of it. Why Surinder is calling me Mapsa और वो मुझे Mapsa क्यों बोल रहा है. तो राजस्थान में क्या है कि एक ट्रेडिशन है. लाइक यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा उसको शॉर्ट करके उसके पीछे सा ऐड कर दिया जाता है जस्ट टू गिव ग्रेटिट्यूड टू दैट पर्सन और respect to that person. That is why my name is from Mahipal. It's changed to Maps up to my friends. Like my friends, used to call me Mapsa. Like I call Surender as Sursa. Surender, so Sur and then Sa. तो ये छोटा मोटा इंटीग्रेशन है जो हमारे राजस्थान के ट्रेडिशन का पार्ट है और ये चलता रहता है. तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि व्हाई ही इज कॉलिंग हिम मैप्सा और व्हाई ही इज कॉलिंग हिम सुरसा, सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म व्हिच वी हैव क्रिएटेड इन आवर राजस्थान ट्रेडिशन. तो अपन शुरुआत करते हैं. पहले तो सुरेंद्र से ये पूछने मतलब सुरसा से पूछने के लिए कि दैट आफ्टर लाइक आई नो योर जर्नी टिल 12th राइट, कि हम 12th तक हम लोग साथ में थे. यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, यू आर गुड इन स्टडीज, वो सब हमें पता है. पर आफ्टर दैट व्हाट आर द बिग स्टेप्स यू टुक. क्या आपने स्टेप्स लिए अपने कैरियर के रिगार्डिंग, और कैसे आपने मतलब फ्रॉम ए साइंस बैकग्राउंड आपने कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज किया, कैसे आपने एमबीए किया. तो लिटिल बिट ऑफ दैट लाइक कॉलेज लाइफ एंड ऑल. The first of all, schooling के बाद I thought कि everybody is doing engineering that time. So most of our classmates joined engineering colleges, but I have a different plan in terms of I want to do something else. But I interested in particularly in computer and programming language. So that I choose I need to do BTech
in computer science or BCA. So for I have not very good grades in 12th and in science stream, so I could not join good colleges in that time. It's a very tough competition in India. So I choose a like easy way. So just join one of the private college in Pune and start BCMI course. Mm, आपने so PCA किया मतलब 12th के बाद? जी मैंने 2015 में स्टार्ट किया था BCA. So I am not fully convinced कि BCA is a good course or BBA. I have no idea like that time. But eventually I start a first semester and then I learned new things like accounting, business management. But before that ये कॉमर्स में भी थे, but we don't know. हाँ, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि अपन लोग साइंस बैकग्राउंड से थे तो अपने को अकाउंट्स वगैरह का इतना नॉलेज होना वैसे पॉसिबल भी नहीं था. तो इवेंचुअली बट हमको मुझे कॉमर्स करनी चाहिए इन बेसिकली प्रॉपर वे, बट मैंने साइंस ले ली, पता नहीं था तो कर ली. बट BCA में जाके पता चला कि ठीक है ये बहुत अच्छा कोर्सेस है. तो इवेंचुअली BCA में क्या होता है कि आप ज्वाइन करते हो तो स्टार्ट में आपके बिजनेस के कोर्सेस रहते हैं. उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है. तो मेरे लिए तो चैलेंज था एक्चुअली अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट और प्रिंसिपल मैनेजमेंट ये सारे कोर्सेस. बट मैंने अच्छा स्कोर किया उसमें और फिर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही मेरे को बहुत इंटरेस्ट आने लगा. तो मैं इवेंचुअली लाइक 12 तक तो इतना एवरेज स्टूडेंट था, बट उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और मेरे ग्रेड्स भी अच्छे हैं. तो फिर मैंने इवेंचुअली कॉलेज में काफ़ी हार्ड वर्क किया उसके मतलब जो भी सब्जेक्ट्स थे उसके हिसाब से. अच्छा और फिर आपने कॉलेज उसके बाद में फिर आपने मतलब हाउ यू स्टार्ट लाइक फ्रॉम BA आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे मूव किया? लाइक BCA जब आप करते हैं तो फिर आप एज ए या तो सॉफ्टवेयर टेस्टर बनते हैं या BPO में जाते हैं या फिर आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर ये टाइप की जॉब्स ही मिलती हैं इंडिया में. तो फिर आई इवेंचुअली स्टार्ट एज ए फ्रंट एंड डेवलपर. अच्छा, और फिर मतलब फर्स्ट जॉब भी आपने फिर पुणे से, आई थिंक पुणे में थे आप उस वक्त, राइट? आई इवेंचुअली 2018 के बाद पुणे ही था. आई वाज सर्चिंग जॉब. उस टाइम थोड़ा टफ टाइम था. लाइक थॉटिकली ग्रेड्स वाइज इज ओके, बट प्रैक्टिकली नॉलेज भी ज़रूरी होता है और इंडस्ट्री के हिसाब से वो फिट इन नहीं हो रहा था. तो थोड़ा स्ट्रगल तो होना ही था. बट फिर उसके बीच थोड़े टाइम बाद कोविड भी आ गया. उससे पहले कंपनी भी मिल गई तो फिर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन कर लिया. तो फिर कितना टाइम आपने किया वहाँ पे काम? मैंने 2 इयर्स किया है. 2 इयर्स इन अ कंपनी? हाँ जी. उसके बीच मैंने गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी की, काफ़ी एग्जाम्स भी दिए, बट इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन, सो couldn't get any like final tasks तो कभी हुआ ही नहीं. तो फिर यही कंटिन्यू करना पड़ा. और फिर कोविड आ गया तो फिर वर्क फ्रॉम होम हो गया. तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं था, घर से आप करो, सब जितना हो रहा है वो करो. भैया मैंने एक चीज कॉमन देखी है वैसे सोचता कि मतलब अगर आप राजस्थान से हो तो हर इंसान गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो कर ही रहा है. मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब टाइम फ्रेम में उसने गवर्नमेंट प्रिपरेशन करी है. लाइक प्लान भी कह सकते हैं. प्लान भी रहता ही है और करना ही पड़ता है. देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि लाइक इवेंचुअली जब आप 18 में होते हो तो अलग चैलेंजेस रहते हैं, 21 में अलग चैलेंज रहते हैं. तो फिर वो टाइम के साथ फिर आप प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है.
आपके लिए वैसे गवर्नमेंट जॉब का क्या मोटिवेशन था, लाइक आपके भी फैमिली बैकग्राउंड में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, एज फार एज आई आई नो, और मेरे भी सारे मतलब मोस्टली सब गवर्नमेंट जॉब में ही है, लाइक मेरे भैया मतलब पापा वगैरह सब गवर्नमेंट में ही थे। तो मतलब गवर्नमेंट जॉब करना इज लाइक ए फैमिली प्रेशर फॉर यू और इट्स जस्ट अ चॉइस फॉर यू, कि आपका प्लान भी था ऑलरेडी कि नहीं मेरे को पहले से ही करना है? इवेंचुअली मेरा 2018 जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मुझे जापान आना था एक्चुअली। मेन प्लान तो अच्छा। वो था। तो इवेंचुअली आई जॉइन मेनी जॉब फेयर्स इन पुणे, बेंगलोर, और ऑनलाइन भी काफ़ी ट्राई किया लिंक्डइन पे। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक यू नीड ए गुड एक्सपीरियंस। नॉट बैचलर डिग्री से आप कोई भी कंपनीज इतना रिस्क नहीं लेती है फॉरन। हाँ, वो भी है। और फिर करेंगे अपने आने आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ताकि डिटेल इन डेप्थ अपन उसको कवर कर सके। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन तो जो सबसे बड़ी बात है कि आपका इंस्पिरेशन क्या था टोक्यो जाने के लिए, कि भाई क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप टोक्यो जाए, वहां अपना कैरियर बनाए या फिर सेटल हो? क्या क्या चीजें थी वो? ट्रूली आई सेड कि लाइक मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि भाई टोक्यो ही आना है या जापान आना है। बट मुझे ऐसा था कि मैं कुछ थोड़ा बड़ा करो, लाइक थिंक बिग। बट वहाँ क्या है कि फिर एक जगह आप जब 1 लाख में एक बार आप भी उसी में शामिल हो जाते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि आप बड़ा क्या करोगे। बाद में इवेंचुअली लाइक मेरी कज़न सिस्टर यहाँ पे है, लाइक मेरे भैया सिंगापुर है, तो उन्होंने थोड़ा गाइड किया कि लाइक मेरा ऐसा था कि मैं कोडिंग वोडिंग अच्छा करता था, बट वो कोई सक्सेस नहीं थी यार। ठीक है, 3 साल बाद 4 साल बाद एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता। बट जैसे मेरे मैनेजर्स थे मेरी कंपनी में, उनसे मतलब ज़्यादा अच्छी थिंकिंग मेरी थी, तो मैं सोचता था कि मैं भी एक एमबीए करूं या ऐसा मास्टर कोर्स करूं तो फिर मेरी स्किल अच्छी हो जाएगी। तो वो मोटिवेशन से मैं जापान की तरफ देखा कि हाँ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। नहीं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंक्लिनेशन फॉर कि आज अगर मैं यूएस के बारे में देखूं कि मेरे को मान लो कि कल को मुझे जाके यूएस या दुबई में सेटल होना है, तो उसके लिए कुछ इंस्पिरेशन, कोई इंक्लिनेशन होता है, लाइक दुबई में लाइफस्टाइल अच्छी है, टैक्सेस एंड ऑल, देन यूएस के अंदर ऑब्वियसली द ग्रेट बिग अमेरिकन ड्रीम, तो लाइफस्टाइल हो गई सब चीजें, ऐसा कुछ इंक्लिनेशन पार्ट आपके सोर्स आपके भी मतलब उसमें रहा होगा ना, कि हाँ ये एक चीज है जो मुझे इंस्पायर करती है कि नहीं यार मेरे को जापान जाना है इस चीज के लिए? देखो, पहले तो आपको पता नहीं होता है इतना कि वहाँ पे टैक्सेशन कितना होगा और आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले क्वेश्चन तो यही रहता है। टैक्सेशन लाइफ तो बाद में रहती है, मेन ये रहता है कि भाई आप कुछ अच्छी ढंग की कोई एक मास्टर डिग्री कर लो तो फिर वहां से प्लेसमेंट हो जाए। पहले तो बच्चा यही सोचता है। अच्छा, मतलब आपका इंस्पिरेशन ये था कि वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज है? हाँ, ये मेरे मतलब ये इंश्योरेंस दी थी मेरी दीदी वगैरह ने, जैसे वो जॉब कर रहे थे और अच्छा। थोड़ा मुझे पता था, वीडियो कॉल्स पे बात होती थी। बट बट है ना, मेरे को 2% ही पता था। आप यहाँ आओगे अच्छा। तभी समझ में आएगा। 98% प्रॉब्लम ये है। अच्छा। तो फिर वो जब उन्होंने कहा कि भाई आग में कूदना है तो कूदिए, वो वाली बात। नाइस नाइस इंस्पिरेशन बाय द वे। अपने वैसे यही कहते हैं कि भाई करना है तो करो, और क्या। चलो, तो आपने जैसे आपको पहले से आपको पता था कि हाँ चलो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, मतलब जापान में, तो मुझे वहाँ जाना है ताकि मैं यहाँ से बेटर अपने कैरियर को एक बेटर बूस्ट दे पाऊँ। ठीक है, तो उसके बाद में मतलब आपने जब, जैसे आपने बताया कि मैंने बहुत सारे इवेंट्स वगैरह अटेंड करे, मतलब अब्रॉड सेटल होने के लिए या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो सबसे पहली बात तो आप ये बता सकते हो कि मतलब वो इवेंट्स में जाना किसी एक एस्पिरेंट के लिए कितना फायदेमंद होता है? मतलब क्या चांसेस होते हैं कि उसको वहां से मतलब सच में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी उनके थ्रू मिल जाएगी, या फिर वो सिर्फ एक मार्केटिंग इवेंट ही होता है जस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए? मैं ये बोलूँगा कि कुछ कंपनीज मार्केटिंग स्टंट करती है, आई एग्री, बट कुछ कंपनीज दे पोटेंशियली वांट समथिंग
like they want to hire something. They are really searching for talent. Yes, they are searching for talent. If you are in good in technical courses like any of electrical, or if you have a good experience, they definitely they will hire you. तो अच्छा उससे मेरे को जॉब फेयर से क्या फायदा मिलता है कि वहां जाके मुझे पता है जॉब नहीं मिलेगी. हम्म, अच्छा उससे ये फायदा होता है कि तुम जाओ वहां पे, ठीक है, खुद मेहनत करो, बात करो, और हो सके तो इंटरव्यू अरेंज करके इंटरव्यू कर लो, ठीक है. अच्छा हाँ, पता चलेगा कि जापानीज में इंटरव्यू कैसे होते हैं, जापानीज कंपनीज का कल्चर क्या होता है. वो मुझे वहां पे एक्सपीरियंस मिला है. हाँ मतलब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई कि कंपनीज का क्या प्रोसेस रहता है, वर्क एनवायरनमेंट वगैरह कैसा रहता है, वो सारी मिल गई आपको वहां से. हाँ, पर आप वो वहां से कोई रिजल्ट मिले या मिले सच में कोई एक आधा इंटरव्यू कहीं स्केड्यूल हुआ उन इवेंट्स में भी? हाँ बिल्कुल, मेरा इंटरव्यू 2017 में ही हो गया था, सेकेंड ईयर में. ओके और इवेंचुअली उस टाइम मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, वही प्रॉब्लम थी. और उनको वेब डेवलपमेंट इंजीनियर चाहिए था. यहाँ पे जापान में ओकिनावा करके एक प्रीफेक्चर है, वहाँ पे है वो कंपनी, आईटी कंपनी, स्टार्टअप ही थी. मतलब इवन सैलरी तक बात हो गई थी, बट उनको है ना, मतलब ये थोड़ा डाउट था कि ही कैन डू और नॉट. मैं पास आउट भी नहीं हुआ था, प्रॉब्लम ये था. तो वो क्या है कि थोड़ा रिस्क नहीं लेते हैं न्यू स्टार्टअप कंपनीज. ऑब्वियसली हाँ, वो भी अगर कोई बंदा बाहर से सेटल हो रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सोचती है कंपनी उसके बारे में. अगर आप एनआईटी आईआईटी से हो तो फिर वो खुद आके लेती है प्लेसमेंट में, बट मैं तो खुद उनके पास गया था. बट एक ये होता है, वहां से कॉन्फिडेंट आया कि लाइक यू कैन डू इट, और या फिर यू हैव सम चांस, समथिंग लाइक दैट. चलो बढ़िया, नाइस नाइस. मतलब वो इवेंट्स भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन आपकी किस्मत. मतलब आपके पास टैलेंट ऑब्वियसली है तभी आप ऐसी जॉब में अप्लाई करोगे या फिर ऐसे इवेंट में जाओगे, बिकॉज यू आर इंस्पायर्ड फॉर दैट कंट्री और कोई अपॉर्चुनिटी. बट वो जो लास्ट मोमेंट, मतलब फाइनल डिसीजन, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, लाइक ऑन इन विच यू आर गिविंग द इंटरव्यू, राइट? उसमें एक ट्रिकी पार्ट ये था कि आपको जापानीज लैंग्वेज आनी चाहिए. अच्छा, पहले से ही अगर कोई बंदा का मतलब, अच्छा चलो, मतलब ये एक अपन पॉइंट मान सकते हो कि अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हो तो जिस कंट्री में आप सेटल होना चाहिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए एटलीस्ट पहले से ही. हाँ, मतलब या तो आपको एक्सपीरियंस हो अच्छा सा, ठीक है, नहीं है एक्सपीरियंस तो फिर आप उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए. अच्छा, देन यू कैन गेट ए मोर अपॉर्चुनिटीज. देन हाउ यू गेट ए चांस, लाइक आपको भी उन्हीं इवेंट्स के थ्रू ही मिला मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर आपने खुद ने पर्सनली अप्लाई किया था कंपनी में? नहीं, उस टाइम तो मैं जॉब फेयर वगैरह स्टार्ट मतलब किया था काफी टाइम पहले 2017 में. उसके बाद तो आई कुडंट गेट जॉब इन जापान, मतलब ओवरसीज तो बहुत मुश्किल होता है. तो फिर आई स्टार्टेड वर्क इन इंडिया. बट उसके बाद ऐसा हुआ कि लाइक वही सुबह 13 घंटे काम करो, कोडिंग करो, और नील बट्टा सन्नाटा सैलरी. कोविड का ऐसा तो नहीं है यार, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को तो बहुत अच्छी मिलती है सैलरी इंडिया में, एज फार एज मिलती है. देयर इज अ टू टाइप ऑफ डेवलपर, वेरी गुड टैलेंटेड एंड एक एवरेज डेवलपर रहता है. अच्छा, तो मतलब वही बात हो गई, जैसे रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी क्या पैसा कमा पा रहे हैं? कितना कमाएंगे? 35,000, 40,000 बस. आप ये कह रहे हो कि मतलब जो अच्छे डेवलपर्स हैं, जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, जो अपने आप को अपग्रेड करके चल रहे हैं, वो उनको अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है इंडिया में, और बाकियों को नॉर्मल लाइक एवरेज? एक्चुअली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर दो टाइप के होते हैं. एक्चुअली आप आईआईटी से पास आउट हो जाओ, कंप्यूटर साइंस से, भले ही आपको बहुत बड़ी कंपनी ने हायर किया है, बट आप कोड नहीं लिख पाते 8 to 10 months.
तो वो फायर कर देंगे आप। अच्छा अच्छा। मेरा ऐसा सीन था कि मैं मतलब मुझे ट्रेन किया बैकएंड लैंग्वेज के लिए, हम्म, और प्रोजेक्ट आया फ्रंट एंड का। कोविड के टाइम बहुत शॉर्टेज चल रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंज था। तो फिर मैंने फ्रंट एंड पे काम किया, तो मेरा फ्रंट एंड अच्छा हुआ, तो उन्होंने बैक एंड में डाल दिया। अच्छा। वो तो ये नॉर्मल चैलेंजेस ऑफ जॉब। तो फिर मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे डिस्कवर करी, लाइक जैसे आप बता रहे हो कि आपके सिस्टर ऑलरेडी जापान में थे, तो आप मतलब पहले वहां गए फिर आपने जॉब ढूंढा, या फिर पहले यहीं से जॉब पूरा कंफर्म करके फिर जापान गए? तो दो तरीके होते हैं, मतलब जापान जाओ, ऑस्ट्रेलिया, या फिर यूके। मैं 3 ऑप्शन दूंगा अभी। हम्म, तो ऑप्शन ये रहता है कि आप या तो स्टूडेंट वीजा पे जाओ। हम्म, तो स्टूडेंट अच्छा। वीजा में क्या होता है कि यू नीड टू अप्लाई फॉर लाइक मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, हम्म, जो भी आपको करना है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, बिजनेस, जो भी है, हम्म, उसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई करो। अच्छा। ठीक है, तो मुझे करना था एमबीए, हम्म, तो मैंने एमबीए के लिए अप्लाई किया, और उसी अच्छा टाइम मैं जॉब कर रहा था अच्छा, यहाँ इंडिया में? इंडिया में, वर्क फ्रॉम होम था। और मैंने मतलब स्टार्ट कर दिया था जीमेट की प्रिपरेशन जॉब के हम्म, साथ। अच्छा। हाँ, तो जीमेट की प्रिपरेशन के साथ ये था कि भाई लाइक एडमिशन मेरा मतलब बहुत लेट डिसाइड हुआ कि मैं एडमिशन लूंगा, ये वो दीदी ने सडनली कहा। हम्म, और थोड़ा जॉब में भी ये था कि जॉब तो चल ही रहा था, कोई प्रॉब्लम, पर प्रोग्रेस नहीं था इंडिया में, अच्छा। बात ये। हम्म। फिर आपने सोचा कि मैं एमबीए कर लेता हूँ चलो, और यहाँ से करने से बेटर है कि मैं जापान में जाके ही करूँ, ऐसा? इंडिया में तो पैसे डालने से वेस्ट है एमबीए में। ऐसा क्यों? मैंने देखा नॉर्मली जो 2-3 एमबीए करे हुए लोगों से मैं मिला हूँ, सब यही बोलते हैं कि नहीं यार, इंडिया में एमबीए करने का कोई फायदा नहीं है, या फिर जितना आप इन्वेस्ट करोगे उस कोर्स में उतना मतलब बेनिफिट आपको मिलता नहीं है, वापस रिजल्ट्स नहीं मिलते उतने, लैक ऑफ देखो, अपॉर्चुनिटी। या फिर हो सकता है कि लोग सीरियसली एमबीए कर ही ना रहे हो, ये भी हो सकता है। एक्चुअली देखो, एमबीए भी आपको करना है तो अच्छे कॉलेज से करना पड़ता है। देखो, हम्म, इंडिया में तो ये सीन है। अब आप हम्म, प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो मतलब 25 lakhs पूरा कॉस्ट आएगा, और हम्म, फिर वो आप कॉस्ट निकालते निकालते 5 साल निकल जाए। अच्छा। मतलब तो जितना आप जितना कोर्स करने में इन्वेस्ट करोगे उतना फिर आपको अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी शायद नहीं मिलेगी, हमें ये बोल रहे हो आप? हाँ, इंडिया में नहीं मिलेगी। हम्म, तो फिर आपने कैसे मतलब कैसे किया फिर जापान में? अच्छा, आपने एजुकेशन के लिए वहाँ पे एमबीए के लिए अप्लाई किया कॉलेज में? हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, हम्म, आईयूजे। हम्म, तो वो कोर्सेज प्रोवाइड करती है, एमबीए 2 year, 1 year एमबीए, और हम्म, डीएक्स कोर्स फॉर 1 year, और हम्म, एमए कोर्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, हम्म, और 2 कोर्सेस और है, आईडीपी, और प्लस एक और कोर्स है, आई एम मिसिंग समथिंग, पीएमपीपी समथिंग, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रहता है। हम्म, तो इसमें एमबीए के लिए सिर्फ जीमेट चाहिए, बाकी कोर्सेज के लिए उनका खुद का टेस्ट सिस्टम है। अच्छा अच्छा। तो आपने और पहले जीमेट की प्रिपरेशन करी, उसको भी क्लियर किया यहाँ आने से पहले, या फिर अप्लाई करने से पहले आपने जीमेट किया, या फिर मतलब अप्लाई कर दिया देन सेम टाइम आप जीमेट की भी प्रिपरेशन कर रहे थे? मैं मतलब पहले स्टार्ट किया था जीमेट प्रिपरेशन, हम्म, एक एक मंथ, एक्चुअली वो 7-8 महीने पहले करनी चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा। हम्म, तो जीमेट का ऐसा सीन है, कैट का एग्जाम रहता है अपने यहाँ, अच्छा। मैनेजमेंट हम्म, पासिंग हम्म, एग्जाम रहता है, वैसे ही हम्म, वो सेम मॉड्यूल है। तो हम्म, उसमें आप थोड़ा पहले करो तो फिर ज्यादा चांस रहते हैं कि आप स्कोर कर पाओगे। हम्म, तो मैंने कम टाइम में किया था, बट ठीक है, डिसेंट स्कोर आया। तो फिर आप क्या करते हो, एमबीए में जीमेट जब देते हो तो जब उसका रिजल्ट आता है तो वो बोलती है कि आप कोई भी 5 यूनिवर्सिटी में आप अपना स्कोर सेंड कर देंगे हम। हम्म, तो अच्छा फिर ऐसा।
ये बेसिकली वैसे ही है जैसे अगर बाहर कहीं जाना है तो आपको आइलेट्स देना होता है, वैसे ही अगर आपको कोई बाहर एजुकेशन डिग्री मान लो जस्ट फॉर एमबीए जीमेट देना होता है या फिर कोई भी कोर्स के लिए जीमेट देना होता है? मैनेजमेंट कोर्स के लिए। अच्छा, मैनेजमेंट कोर्स के लिए जैसे आइलेट्स होता है वैसे जीमेट आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, आईएल्ट्स में ये सीन है कि कुछ कॉलेजेस में जैसे यूके की होगी, आई थिंक यूएसए की भी होगी इंक्लूड, वहाँ पे आईएल्ट्स भी देना पड़ता है, और फिर आप आईएल्ट्स के साथ आपको मैनेजमेंट कोर्स करना है तो जीमेट आप पास आउट करो। अच्छा। आप तो टॉप उसके कॉलेज बाद में भी, हाँ, अगर आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो मैनेजमेंट के, कोई भी कंट्री में, तो आपका जीमेट ही चलेगा। अच्छा अच्छा, तो आपने पहले जीमेट क्लियर किया, फिर जीमेट ने ऑटोमेटिकली आपका 4 यूनिवर्सिटी में भेज दिया स्कोर? मैंने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। अच्छा, इसी में किया था और इसी में हो गया आपका? हाँ, मतलब फुल एंड फाइनल एक ही प्लान था। हम्म, तो जैसे ही नॉर्मली अगर लोग प्लीज। नॉर्मली लोग 5 में भेजते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने इसमें अप्लाई किया, उसके बाद में फिर आपको वीजा अलग से अप्लाई करना पड़ा जाके, या फिर मतलब क्या प्रोसेस रहा? क्योंकि देखो मैं तो एक ये मानो बिगिनर हूँ, मेरे को नहीं पता कि कैसा क्या प्रोसेस रहता है, और मैं जानता हूँ अपन ये कर रहे भी लाइव स्ट्रीम इसीलिए ताकि जो बिगिनर हो, जिसको जीरो नॉलेज हो इस चीज के बारे में, उसको थोड़ा नॉलेज मिल जाए कि भाई कैसे क्या प्रोसेस रहता है। तो जीमेट क्लियर किया आपने, आपका एडमिशन वहां से कंफर्मेशन आ गया होगा कॉलेज से कि भाई यू हैव बीन सेलेक्टेड, फिर उसके हाँ, बाद में क्या प्रोसेस रहता है? बाद में ये प्रोसेस रहता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो उसके साथ हम्म, आपका स्कॉलरशिप का रिजल्ट आएगा। अच्छा, स्कॉलरशिप भी आप अप्लाई करो उसी वक्त? उसी मतलब में इधर आप, मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बीच में, इधर आप स्कॉलरशिप के थ्रू कर सकते हो और खुद भी पे कर सकते हो, राइट? या फिर सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए ही अप्लाई कर सकते हो? एक्चुअली देखो, हम तो है मिडिल क्लास नॉर्मल लोग, तो हम्म, मैं तो प्रेफर ये करूंगा कि बिना स्कॉलरशिप के तो आप फॉरेन जाओ ही मत, कोई भी मत। अच्छा। हम्म, ट्रू। मतलब एमबीए छोड़ो, कोई भी कोर्स हो, बिना हम्म, स्कॉलरशिप के जाना ही नहीं है। हम्म, ठीक है, लकीली जापान ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट को देता अच्छा, तो है। अगर आपका आपका कितना परसेंटेज हुआ स्कॉलरशिप? 100% पूरा? मेरा 100 नहीं था, मेरा 70% था। अच्छा, 70% आपका स्कॉलरशिप में कवर हो गया, जो भी कॉलेज का फीस रहा 2 साल के लिए, और बाकी का फिर आपने मैनेज किया खुद से पर्सनली? हाँ, वो मैंने मैनेज किया, तो मुझे फिर भी 87 लाख येन की मिली थी, मतलब अराउंड 48 लाख। 48 लाख यू हैव टू मैनेज फ्रॉम योर साइड? नो, इतनी तो स्कॉलरशिप थी। अच्छा, उतने की स्कॉलरशिप थी और बाकी का रिमेनिंग पार्ट आपने खुद से कर दिया यहाँ पे? हाँ जी, मैंने किया था, और उसके साथ मैंने फिर मैंने सोचा था कि भाई मैं फैमिली के मतलब बर्डन ना बनूं, तो मैंने हम्म, खुद से ही प्लान किया, और मैंने खुद ना अपना एडमिशन के बेस पे एजुकेशन लोन अप्लाई कर दिया। अच्छा अच्छा। चलो वो भी बढ़िया है, ये तो एटलीस्ट एजुकेशन लोन तो बहुत इजीली मिल जाता है वैसे इंडिया के अंदर। तो उसके बाद में फिर अपना वीजा वगैरह का कैसा प्रोसेस रहा, जो भी है, कैसे आप जापान गए? तो अगर एक बार आपका कहीं भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हो गया है, हम्म, तो द कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो भी होगी वो आपके लिए अरेंज करके देगी। अच्छा, वो खुद से ही सब कुछ आपको सेंड कर देंगे, जो भी मतलब नीडफुल डॉक्यूमेंट होंगे सारे? हाँ, उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स सेंड करने पड़ सकते हैं बाय हाँ वो। पोस्ट, हम्म, बाय ईमेल भी करने पड़ेंगे, बट हम्म, सब कुछ वो करके देते हैं। दे हैव, मतलब बहुत सालों से मैनेज कर रहे हैं, तो उनको सब हाँ वो चीज। तो उनको ऑब्वियसली कनेक्शंस भी होते हैं उन लोगों के, उन लोगों को नॉलेज भी उनकी बेटर होती है इस चीज़ों को लेके, हाँ, क्योंकि डेली का काम हो जाता है स्टूडेंट्स को, मतलब बुलाना ये करना। तो जैसे आप जापान, मतलब जापान जब गए वहाँ पे, तो आपको फर्स्ट मतलब जाते ही क्या चैलेंजेस आए? फर्स्ट तो लैंग्वेज बैरियर ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ की जापानीज चलती है वहाँ पे। उसके अलावा जैसे मतलब फूड को लेके, लोकल पीपल का बिहेवियर लेके, ट्रांसपोर्ट लेके, मतलब रहने करना कैसे रहा, हॉस्टल कैसे, सब कुछ ये क्या मतलब क्या फर्स्ट चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े वहाँ पे जाके? पहले सबसे बेस्ट चैलेंज मेरे यही था कि खाना कैसे बनाएंगे। अच्छा, तो आपने हॉस्टल में रह रहे थे यहाँ पे जब आपने जापान मैं में आए थे, हॉस्टल में रहते थे?
मैं हॉस्टल में रहा था। सब लोग हॉस्टल, वो थोड़ा आउटसाइड है कॉलेज, कंट्री साइड। हम्म, बट मेरे ये था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था मेरे लिए कि हमारे तो खाना घर पे बनता था, आराम से खाओ हम्म, मस्त। और हॉस्टल में भी रहे तो मेस था, आदत हाँ, नहीं। हम्म, तो मेन चैलेंज वो खाने का था। तो फिर अपने जो जैसे बोलते हैं मारवाड़ी, जब जाते हैं तो खाना पीना तो साथ ही लेके जाते हैं। तो हम्म। फिर घी दाल सब लेके अब लेकर आया राशन पूरा लेके एकदम डी मार्ट से शॉपिंग करके। पूरा एकदम बर्तन वर्तन सब लेके जाने पड़ते हैं, चाय पत्ती भी साथ में। वो तो आई कैन अंडरस्टैंड। मैं भी जैसे अपने होम टाउन पाली से जब जयपुर शिफ्ट हुआ था, तो मतलब ऑब्वियसली सब बर्तन एक तो खरीदो, नहीं है तो लेकर आओ, राशन का स्टॉक रखो। कभी लाइफ में कभी 12 तक तो कभी देखा भी नहीं कि किचन में क्या है, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फिर सडनली अचानक से आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, किचन भी, खुद की लाइफस्टाइल भी, सारे कुछ खर्चे भी सब। तो वहाँ का मतलब वैसे लोगों का बिहेवियर कैसा जापान जापान में, मतलब आर दे फ्रेंडली टू एक्सेप्ट न्यू पीपल इन देयर कंट्री? वो थोड़े इंट्रोवर्ट है। अच्छा, मतलब इंटरेक्टिव कम है, बट उनको कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मिसबिहेव या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करते वो लोग? मिसबिहेव नहीं करेंगे, हम्म, अच्छे, मतलब अच्छे लोग हैं, ऐसी कोई हम्म, बात नहीं है। और बहुत हम्म, अच्छे से ट्रीट करेंगे। हम्म, अगर अगर आप मतलब ऐसा पूछ लोगे ना कि भाई मुझे मतलब ये रास्ता नहीं मिल रहा है हम्म, या फिर ये एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें ऐसा बता देंगे कि यहाँ से सीधे चले जाना और राइट घूम जाना, नहीं। आप चलो मेरे साथ, वो छोड़ के आएंगे तुम्हें। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा नेचर है वहाँ के लोगों का, फ्रेंडली नेचर है, हेल्पफुल है। हाँ, हाँ, बहुत हम्म, बहुत। इस मामले में जापान बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, अब लोकल फ्रेंड्स बने आपके वहाँ पे हॉस्टल टाइम में और फिर एमबीए में? हाँ, कॉलेज टाइम में काफी थे और अभी ऑफिस में भी हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। तो आउटिंग वगैरह वहाँ पे लोग करते हैं, जैसे लाइक इंडिया में जैसे सब चलता है अपना यंग लोगों के अंदर, वैसा सब कुछ जापान में भी सब कुछ वही घूमना फिरना? जापान में जैसे कॉलेज लाइफ में तो सेम वैसे ही रहता है, जैसे आपके हम्म, सर्कल रहेंगे वैसे आप निकल जाओ। और बट हम्म, प्रोफेशनल लाइफ में ये इसमें कंपनीज में ये रहता है कि आपकी है ना, मतलब कुछ तो पार्टीज रहेगी, अच्छा, तो उसके भी कुछ रूल है। अच्छा, पार्टी का भी रूल है? बहुत हम्म, जबरदस्त। हम्म। ड्रेस कोड आई रहता है। रिमेम्बर क्योंकि अब धीरे धीरे ये पार्टी कल्चर थोड़ा आ गया है कंपनीज में, जैसे कंपनीज खुद ही ऑर्गेनाइज करती है, वहां पे जाओ आप आराम से, जो भी आपका एंटरटेन मतलब जो भी आपको करना है, एंजॉय करना है, करो आप आराम से। सारा कंपनी की तरफ से पेड रहता है। धीरे धीरे आ रहा है कल्चर, हालांकि अभी इस बड़ी एमएनसीज फॉलो कर रही है इसको, और छोटी कंपनीज भी कर रही है, जो जो अपना वर्क कल्चर अच्छा रखना चाहते हैं वो लोग ऑब्वियसली इन्वेस्ट भी करते हैं इन चीजों के अंदर। तो ये तो अभी आई थिंक सब जगह हो रहा है पार्टी वार्टी वाला तो। हाँ, जापान में मतलब जापान में वर्क कल्चर के हिसाब से आप बात करोगे ना, हम्म, तो मैं सुबह 9 बजे लैपटॉप पे बैठा हूँ, हम्म। तो मैं शाम 5 बजे तक आई थिंक मैं किसी से बात नहीं किया और मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा होता है। अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्कलोड और बिकॉज ऑफ, मतलब कैसे? क्योंकि जैसे अगर अपन यहाँ पे उसी भी पे। 9 आवर्स की shift है तो 1 आवर तो अपन ब्रेक लेते हैं, और वर्क फ्रॉम होम है तो एक्चुअली थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है। हम्म। मतलब आपका कंटेक्स्ट क्या है इसके रिगार्डिंग के, मतलब वो वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि आपको पूरे 8 घंटे 9 घंटे उसी में रहना पड़ता है? एक्चुअली मेरी टीम में क्या है कि मेरे तो सारे बॉस ही है। अच्छा, हाँ, तो फिर बिना काम तो उनसे कुछ पूछना ही नहीं। हम्म, और अगर मेरे पीछे भी मेरा बॉस बैठा रहेगा एकदम, हाँ, तो हाँ, मुझे मेल लिखना है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली वो तो प्रोटोकॉल्स है। वो तो फॉलो करनी है अपन को। हाँ, मतलब यू यू मीन टू से दैट पीपल वर्किंग इन द जापानीज कंपनीज आर नॉट दैट मच इंटरेक्टिव, और थोड़ा कम उसमें इंटरेक्शन में कम बिलीव करके और वर्क में ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई अपन जो 8 घंटे यहाँ पे इन्वेस्ट करने आए हैं, वो सिर्फ वर्क को करने आए तो वर्क पे ही करेंगे। ऐसा अपने इंडिया में जैसा नहीं है, चलो बात कर ली कि चलो उसके क्यूबिकल में चले गए, फिर चलो घूमने चले गए, थोड़ी देर ब्रेक ले लिया, ऐसा वाला कम सीन होगा वहाँ पे। लाइक
मैं ये बोलूंगा कि इंडियंस काफी हार्ड वर्किंग है इन टर्म्स ऑफ लाइक, आप कोई भी कंट्री से कर लो, इंडियंस काफी ऑब्वियसली। हार्ड वर्किंग है, बट उनको वो इन टर्म्स ऑफ बैक पे नहीं मिलता है। पर जापान में क्या होता है कि आप हार्ड वर्क करोगे और आप एवरेज काम भी करोगे तो सेम सैलरी मिलती। अच्छा, मतलब देर इज नो डिफरेंशिएशन वहां पे, कोई अच्छा डेवलपर और नॉर्मल डेवलपर वाला डिफरेंशिएशन नहीं है वहां पे। सब डेवलपर मतलब एक ही कैटेगरी के हैं, उनमें कोई हाई पे स्केल पे या लो पे स्केल पे ये कुछ नहीं है वहां पे, है ना? यहाँ पे ऐसा है कि आप एक कंपनी ज्वाइन कर ली, हम्म। परमानेंट एम्प्लॉय हो, हम्म। तो यहाँ पे रूल ऐसा है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता। अच्छा, इट्स लाइक ए गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। सेम। चलो बढ़िया बढ़िया, अच्छा तो लगा ये आप, जान। तो वो डिपेंड करता है कि भाई मतलब तुम्हारी टीम कैसी है, तुम्हारी कंपनी कैसी है, वर्क कल्चर कैसा है, और वो हार्ड वर्किंग है। तो हमारे तो मतलब छोटी ही टीम है तो सब लोग काम ही करते हैं, तो और वो जापानीज बोलते हैं ज़्यादा, तो और ईमेल्स पे हमारी इंग्लिश में कम्युनिकेशन होती है। तो हम्म। फिर और बीच में थोड़ा बहुत ठीक है, हाय हेलो कर दिया या फिर पानी वानी पी लिया तो ठीक है, कॉफ़ी वॉफ़ी शेयर कर दी, वो ठीक है, बट मीटिंग्स में ही बात होती है अच्छा, ऐसे। नॉर्मल ऐसे कन्वर्सेशन नहीं होती। और I, मेरे I, बहुत, I, in my previous organization, like in which I was working, बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल था वहाँ पे। ऐसा मैं और मेरा मैनेजर, मतलब हम लाइक वी आर लाइक बेस्ट बडीज इन द ऑफिस, राइट? तो चलो अपना काम जो भी डेली का, टीम लीड था मैं वहाँ पे, तो जो भी काम होता था करके फिर ठीक है, थोड़ी चिट चैट कर ली। कभी वो आ गया यहाँ पे मेरी क्यूबिकल पे, चलो हाँ रिपोर्ट बता दे वो, फिर उसके साथ बातें आती हो गई, टीम वालों से बातें कर ली। फिर थोड़ा ब्रेक पे चले गए, फिर वापस आ गए, फिर काम कर लिया, फिर ब्रेक पे चले गए। ऐसा मतलब थोड़ा कैजुअल टाइप में था उस ऑर्गेनाइजेशन में। हालांकि बहुत सीखने को मिला मेरे को वहाँ पे, बहुत से सीनियर से मैंने बहुत कुछ सीखा। पर हाँ, मतलब इतना ज्यादा वैसा नहीं था कि बस हर वक्त अपने सिस्टम पे रहो, या फिर अगर आपको बात भी करनी है तो वाया ईमेल या फिर वाया मीटिंग ही करो। होता रहता था। इवन हमारी फन एक्टिविटी, जो फ्राइडे को फन फ्राइडे बोलते थे, वो एक्टिविटी भी हमारे फ्लोर पे ही होती थी। तो मतलब ये तो माहौल अच्छा था वैसे वहाँ पे, मतलब इंडिया में है, ये कह सकते हैं। जापान में ये है कि काफ़ी कंपनीज ऐसी है जहाँ इंडियंस भी बहुत हैं, हम्म। बट मेरी हाँ, कंपनी में ये माहौल बनी है। अ, एक मैं थोड़ा बताऊंगा, एक कंपनी है जिसमें तो पूरा इंडियन कल्चर है, गूगल के जैसा। अच्छा 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 अच्छा। हम्म, सही है, सही है। हम्म, तो वो तो जापान की रिलायंस है, वैसे यहाँ पे राकुतेन है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो और जैसे अब, जैसे अपन बेसिक अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे अब मैं अगर एक नया बंदा वहाँ पे सेटल होने गया हूँ, फर्स्ट ऑफ हम्म, ऑल मेरे लिए कितना हार्ड होगा वहाँ पे घर ढूंढना। दूसरा, वहाँ के लोग क्या मुझे कितना जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे, मतलब दे आर ओपन लाइक हाँ चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी बंदा काम करने आया, मैं भी काम कर रहा हूँ, ऐसा नेचर है उनका? या फिर कि नहीं, जैसे कि तुम अपने कंट्री से यहाँ पे क्यों आए, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वाला सीन थोड़ी ना है वहाँ पे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब ओपनली तो जापान में कहीं नहीं दिखेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी यूएस, तो छोटा मोटा तो ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, वो होगा होगा। हाँ, और हाउ हार्ड इट इज फॉर यू टू फाइंड रेजिडेंस देयर, लाइक फ्लैट वगैरह ढूंढना कितना हार्ड है? या फिर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस अगर अपन वहाँ पे बात करें, तो जापान में और इंडिया में आप कितना डिफरेंस बता सकते हो कि भाई वहाँ पे लाइफस्टाइल मेंटेन करने का और यहाँ पे इंडिया में करने का कितना क्या डिफरेंस रहता है वैसे? यहाँ जापान में आप जब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक रेजिडेंस फाइंड कर रहे हो, तो हम्म। फिर पहले तो लोगों को इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था तो ज़्यादा पता नहीं था। अब क्या होती है, हम्म। कम्युनिटी बन जाती है कोई भी कंट्री में, अच्छा। इंडियंस की, हर कंट्री की अच्छा। आपकी कम्युनिटी बन जाती है। तो आप हम्म। उनसे कनेक्ट हो जाओ, तो फिर वो हम्म। अपने भाई बहन जो भी है, लोकली सपोर्ट कर देते हैं उस चीज को लेके। वो लिंक हो जाता है। और मेन वैसे अगर मेन मान लो किसी को, मतलब कोई बंदा है, चलो इंडियन नहीं है, किसी और कंट्री से है, वहां पे आया, अगर उसको फाइंड आउट करना है, जैसे अगर इंडिया में अगर अपन बात करें, अगर किसी को प्रॉपर्टी वगैरह फाइंड आउट करनी है, तो जैसे कर सकते हैं मैजिक ब्रिक्स से कर सकते हैं, या फिर एक मेरे फ्रेंड की कंपनी बहुत अच्छी है, कॉर ब्रदर्स एंड कंपनी, लाइक वो भी पुणे में ऑपरेट करते हैं, वहां से कर सकते हैं। तो ऐसे दो तीन जैसे वेब पॉपुलर वेबसाइट्स होती है इंडिया में, तो
तो वैसे ही कुछ जापान में भी कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स होगी जो आप मतलब शेयर करना चाहोगे कि भाई अगर किसी को अब मान लो ढूंढना है तो उसको हेल्प हो जाए उसके लिए। तो मोस्ट रिलायबल और फॉर फैमिली रेजिडेंस यूआर हाउसिंग करके एक कंपनी है योर हाउसिंग। हाँ, यूआर हाउसिंग, और एक है जेके। ओके। उसके अंदर क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि घर तो फाइंड हम कर लेंगे, बट यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं आपके हाउसिंग के, फॉरेनर्स को हर जगह अलाउ नहीं है, हर सोसाइटी में। अच्छा, हाँ मतलब पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मिलता होगा। हाँ वो तो ऑब्वियसली तो हर जगह पे सिमिलर ही रहता है ऑब्वियसली। अब जैसे अगर इंडिया में बात करें, लाइक इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ जयपुर, तो जयपुर में मेन कोर सिटी के अंदर आपको लोकलाइट्स ही मिलेंगे। जितने भी आउटसाइडर्स या फिर जो माइग्रेंट्स है या फिर जो भी वहाँ पे मूव ऑन हुए हैं वो सारे बाहर के एरिया में ही मिलेंगे, आउटस्कर्ट्स में ही मिलेंगे आपको किसी भी सिटी में। तो होता है वैसे नॉर्मली। और वैसे ट्रांसपोर्ट कैसा है वैसा, जैसे अपने इंडिया की तरह लोकल लोग क्या प्रेफर ज्यादा करते हैं, ट्रांसपोर्ट खुद का प्राइवेट व्हीकल ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट? पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट है। हाँ, नाइस, जबरदस्त। फ्री है या पेड है? पेड है। आप कंपनीज में काम करते हो तो आपका कम्युनिटिंग जो भी हो रहा है वो अमाउंट कंपनी पे करेगी। और मतलब हर रूट पे मिल जाएगा, इवन जो भी आपको कहीं पे भी जाना हो तो? मैंने कभी बाइक नहीं चलाया है जापान आने के बाद। अच्छा, कभी भी नहीं चलाया? कार नहीं चलाई है। या तो आप वॉक करो या ट्रेन लो। अच्छा ऐसा मतलब वहाँ पे लोग थोड़ा प्राइवेट व्हीकल कम प्रेफर करते हैं जस्ट बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गुड देयर। देखो मेन ये है कि ऐसे तो बहुत सारे इंडियंस ने यहाँ पे अपना जो इंडियन लाइसेंस रहता है ना, वो स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वीजा आता है ना कॉलेज से, तो फिर वीजा आ जाता है ना, तो फिर आप जाओ आरटीओ में और इंटरनेशनल लाइसेंस ले लो 1 ईयर के लिए, तो वो लेके आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बट मैं जानबूझ के लाया नहीं, क्योंकि अपन को तो है भाई कार का बहुत शौक। तो मैंने कहा मेरे से तो भाई कंट्रोल नहीं होगा, तो मैं पढ़ाई तो चलो फिर इसी पे एक नया क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? ड्रीम कार रेंज रोवर। और कब तक लेने का प्लान कर रहे हो फिर? इफ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कार, अगर आपको फर्स्ट कार परचेज करनी हो तो सीधा रेंज रोवर, obviously because you are working in Japan, that's why you are saying। वो तो बहुत टाइम लगेगा, वो तो बिजनेसमैन ही अफोर्ड कर पाते हैं, बट ड्रीम कार पूछा आपने, नॉट लोगे। और इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कार देन? अभी फर्स्ट टोयोटा की कोई भी चलेगी, इनोवा या फिर वोल्क्सवैगन। पर वहाँ पे तो प्राइवेट व्हीकल कम यूज करते हैं ना लोग, तो फिर आप लेके निकलोगे कहाँ पे? यहाँ पे यूज करते हैं, बट जब ऑफिस जाते हैं ना, तो मेरे सीईओ वगैरह भी मेरे साथ ही ट्रेन में जाते हैं। बढ़िया है, गुड गुड, तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली बिकॉज कितने टर्म्स में हेल्प कर देता है, अपने एनवायरनमेंट के लिए कितना हेल्प कर लेता है, फाइनेंशियली अपन को कितना हेल्पफुल मतलब है। एक तो है खुद की कार का पेट्रोल फूक के जाओ, और एक है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके जाओ, बढ़िया ही है ऑब्वियसली। मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, टोक्यो बहुत क्राउडेड है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब बहुत सारी पब्लिक जापान की टोक्यो में ही रहती है, क्योंकि इंडस्ट्री यही है, कंपनीज का पूरा यहीं पे है, लोग ज्यादा रहते हैं, और फॉरेनर्स भी ज्यादा है टोक्यो में। तो क्या होता है कि ट्रेन से बेस्ट रहता है कि आप जल्दी जाओगे, ट्रेन से यहाँ पे टाइम पे चलती है सारी। अच्छा, कोई भी डिले नहीं रहता, बस थोड़ा सा क्राउड, बस क्राउड आपका ऑफिस टाइम मिलेगा। हाँ वो तो ऑब्वियसली, वो तो पीक टाइम होगा ऑब्वियसली, तो क्राउडेड रहेगी। चलो बढ़िया है। और व्हाट आर द रिवॉर्ड्स, अगर इन टर्म्स ऑफ लिविंग इन जापान अगर देखा जाए तो व्हाट आर द रिवॉर्ड्स ऑफ लिविंग देयर, लाइक गवर्नमेंट फैसिलिटीज क्या क्या है जो आपको मिल रही है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से? जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ऑब्वियसली मिल ही रहा है आपको, और आई थिंक वो भी चीपर रेट्स में ही होगा, मतलब इन कंपैरिजन टू प्राइवेट, मतलब पर्सनल कोई कैब बुक करने से तो इजी रहेगा कि आप ट्रेन बुक करो।
ट्रेन की टिकट ले लो। और उसके अलावा कोई फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वहाँ पे रहने के लिए, अगर आप सिटीजन हो वहाँ पे तो? यस, मेरे पास सिटीजनशिप नहीं है, मेरे पास वर्क वीजा है अभी। हाँ, मतलब रेजिडेंट हो अगर आप वहाँ के तो। रेजिडेंट हो तो मोस्टली क्या होता है कि आप जो वर्क कर रहे हो तो फिर ये कम्यूटिंग फीस तो नॉर्मल है मिलना, प्लस आपको आप परमानेंट एम्प्लॉय हो तो आपको बोनस मिलेगा अच्छा साल में 2 टाइम, अच्छा, हर 6 मंथ्स में? हर 6 मंथ में। बोनस इन द सेंस फुल सैलरी या फिर कुछ उसका पार्ट? अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि 12 महीने काम करो, 14 मंथ की सैलरी ले जाओ। अच्छा, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। हाँ, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाता है। हम्म। और कुछ कंपनीज एयर टिकट, मतलब वो काफी फैसिलिटीज देती है। हम्म। और इन टर्म्स ऑफ डेली एक्सपेंसेस अगर देखें तो इंडिया से जापान सस्ता है, महंगा है, क्या है? जापान थोड़ा महंगा है। अच्छा, हाँ, just because like you are living in Maharashtra of Japan, that is why it is महंगा, या फिर all over Japan महंगा ही है? ऑल ओवर जापान ही महंगा है, अच्छा। स्टैंडर्ड सेम है। हम्म। बस आप कंट्री साइड में रहते हो तो थोड़ा थोड़ा मतलब कम रेंट मिलेगा, हम्म। और थोड़ी सब्जी में वगैरह है, दूध वगैरह में थोड़ा कॉस्ट लेस मिलेगा, बाकी और कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम ही है। अच्छा, सेम ही है। अब वो वैसे पर पर्सन कितनी लिविंग कॉस्ट रहती है मंथली अगर अपन बात करें, जैसे अगर इंडिया में बात करें तो आई थिंक इट्स अराउंड 15 to 20,000 अगर एक पर पर्सन अगर काउंट करें तो, वैसा जापान में कितना रहता है? अगर एक पर्सन रह रहा है जापान में, स्टूडेंट है और या फिर एम्प्लॉय है, तो मतलब इंडिया के आप 45,000 पकड़ लो। अच्छा, पे स्केल भी उस अकॉर्डिंग ही होगा, अच्छा होगा। हाँ, पेज तो अच्छा है, मतलब हो जाता है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके जैसे एक्सपेंसेस सारे निकल जाएंगे, यू कैन सेव सम मनी, डिपेंड ऑन योर सैलरी, लाइक आपकी कैसी कितनी है उसके हिसाब से। चलो, और वो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली फैसिलिटीज, रिवॉर्ड्स? गवर्नमेंट फैसिलिटीज में ये है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अच्छा, पूरा कवर आपका? वो कंपनीज की तरफ से मिलता है, उसमें 50% हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है, 50% ऑर्गेनाइजेशन वो करती है अच्छा। contribute। तो उसमें ये रहता है कि जहाँ आपके 10,000 लग रहे हैं वहाँ आपको 3,000 ही देने हैं, अच्छा। 70% ऑफ होता है। हम्म। और जैसे अगर अपन बात करें जापान में लिविंग स्टैंडर्ड और लाइफ साइकिल की, तो कैसा रहता है आपका दिन? मतलब क्या क्या करते हो? लोग इंटरेक्टिव है? जैसे यहाँ पे तो अगर मुझे बोलेंगे तो मैं शाम को घूमने चला गया, सुबह किसी अंकल से मिल लिया, पड़ोसियों से बातें हो गई, या फिर किसी और दोस्त से मिल लिया कर लिया, तो वहाँ पे वहाँ का वर्क, आपका वर्क एक, मतलब अगर बात करें आपके एक दिन में आप क्या क्या करते हो? जैसे अगर मान लो वीकेंड की बात करें, हाउ यू स्पेंड योर डे? वर्क डे बिल्कुल डिफरेंट होता है और वीकेंड काफी अलग रहता है। तो जैसे वीकेंड बताओ या वर्क डे? वीकेंड, ऑब्वियसली वर्क डे तो आपने बता दिया कि 8-9 घंटे अपन तो पूरा बिजी रहते काम में। हाँ, वर्क फ्रॉम होम रहता है तो फिर इतना कोई काम नहीं रहता है, यू कैन डू समथिंग एल्स, बट ऑफिस में होता फिर यू नीड टू वर्क सीरियसली, वैसा रहता है। एंड इन टर्म्स ऑफ वीकेंड? वीकेंड में जैसे मेरा अभी दिसंबर से पहले क्लासेस चलती थी, तो फिर मैंने थोड़ा क्रिकेट बंद कर दिया था। अब जैसे अच्छा। आज की बात है तो मैं मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं और सब, मेरा एक क्लब है, उसकी क्लब की टीम से खेलता हूँ, तो उनके मैचेस रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ ट्राई सीरीज थी टूर्नामेंट, तो क्रिकेट खेलने चले गए। तो उसमें क्या है कि वो सारे यहाँ पे तो ऑब्वियसली सब वर्क ही कर रहे हैं, तो सारे मोस्टली इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो उनके साथ हो जाता है, मतलब हिंदी में बात करना, मतलब मेरी एज के भी है, बड़े भी हैं, काफी सीनियर्स भी है, तो अच्छा माहौल बन जाता है। चलो बढ़िया, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया में रहना और जापान में रहना में ज्यादा कोई बिग डिफरेंस है नहीं।
जस्ट अपॉर्चुनिटीज को हटा दिया जाए। अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, कोई आप हॉबीज भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैं तो क्रिकेट ही खेलता हूँ, बट इफ एनीवन वांट टू लाइक गो फॉर स्विमिंग तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो। अच्छा। और मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं वहाँ, एक पब्लिक एरिया रहेगा, वहाँ स्विमिंग कर सकते हो, बैडमिंटन रहता है, कहीं जगह फुटबॉल रहता है, काफी गेम्स रहते हैं। हाँ, मतलब कम्युनिटी सर्विसेज इजी एक्सेसिबल है और मेंटेन्ड भी होगी। बिल्कुल, बहुत फर्स्ट क्लास है। हम्म, चलो बढ़िया। तो अच्छा लगा आपसे जानकर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलके। किसी भी और इंसान के लिए जो नया होगा, जिसको बिगिनर होगा, जिसको अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए आई थिंक इंफॉर्मेटिव होगी ये इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आप पूछना चाहते हो जापान में कैसे सेटल होना है, या फिर कोई पर्सनल क्वेरी है आपकी उसके रिगार्डिंग, देन यू कैन कनेक्ट विद सुरेंद्र ऑन हिज लिंक्डइन अकाउंट. Also, you can message me on my LinkedIn account. I will redirect you to Surendra because I do not have any knowledge about it. So feel free to ask any questions if you have any in the personal messages to Surendra and me also. So करें क्लोज, या फिर और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप कुछ शेयर करना चाहोगे? पर्सनल एक्सपीरियंस इन द सेंस लाइक मैं ये बोलूँगा कि आपको अगर भाई करना है, फॉरेन आना है, तो यू नीड टू टेक सम रिस्क। अच्छा, रिस्क लेना पड़ेगा आपको। बहुत बड़ी रिस्क है। बहुत बड़ी रिस्क इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लाइक अगर मैं अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि मान लो अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करके जैसे कैसे करके भी यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर आपकी जॉब नहीं लगी, वो वाला रिस्क की बात कर रहे हो, राइट? वो रिस्क की बात कर रहा हूँ, प्लस आपका टाइम भी जाएगा 2 साल। अच्छा, वो तो ऑब्वियसली बात है, पर वो तो चलो डिग्री अपने को इंडिया में भी काम आई जाएगी अगर एमबीए अपने जापान से कर रखा है तो। हाँ, बट आपने यहाँ इन्वेस्ट किया है, यहाँ की कॉस्ट और लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे अलग लेवल के हैं, तो फिर आप यहाँ पे अर्निंग नहीं करोगे तो फिर वो कॉस्ट इक्वल नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है। सो ओवरऑल इस सेशन से ये कंक्लूड कर सकते हैं अपन को, सबसे पहला अगर आपको एडमिशन लेना है तो ट्राई गोइंग थ्रू द एजुकेशन बैकग्राउंड, लाइक अप्लाई फॉर अ कॉलेज एंड देन अप्लाई फॉर द जॉब। एंड सेकंड थिंग इज, सेकंड है कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो, लाइक यस, कोई डायरेक्टली अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है, राइट? बट बिल्कुल उसके डिपेंड करता है उसके इंटरव्यू वगैरह पे। मैं ये बोलूँगा कि अभी आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो बहुत ही सीरियस ले रही है सारी हायरिंग कंपनी पूरे वर्ल्ड में। ये तो ऑब्वियसली, ये तो मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, लाइक अभी लिंक्डइन बहुत चलन में है। कोई भी हायरिंग प्रोफेशनल होगा वो डेफिनेटली आपके लिंक्डइन अकाउंट को तो चेक करेगा ही करेगा। इवन तो मैं तो अपने भी किसी भी फ्रेंड से मिलता हूँ तो सबको उनको यही बोलता हूँ, भाई अपनी लिंक्डइन को बढ़िया से अपडेट करके रखो ताकि आपको हायरिंग में इजी, मतलब इजी प्रोसेस रहे हायरिंग का। तो जापान में आने के 3 तरीके हैं। तो पहले वाला तो इजीएस्ट वे है कि आप एजुकेशन के थ्रू आ जाओ, एडमिशन ले लो। और सेकंड ये है कि आप या तो लैंग्वेज कोर्स कर लो बैचलर डिग्री के साथ या अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ। तो जापान में जीएलपीटी करके एक एग्जाम रहता है, जापान इंडिया में भी होता है, हर जगह है, दिल्ली है, पुणे है, बेंगलोर है, काफी जगह सेंटर है उसके। तो उसके लेवल रहते हैं। तो फर्स्ट लेवल उसका रिवर्स में स्टार्ट होता है N5। अच्छा। तो फिर आप N5, N4, N3 अगर एटलीस्ट 3 लेवल किए ना तो फिर आपको इंडिया में भी जापानीज कंपनीज हायर कर सकती है। अच्छा, रिमोटली वर्क के लिए। हाँ, और उसके साथ जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्सेस होते हैं, काफी लैंग्वेज के कोर्सेस, जर्मन, फ्रेंच, वहाँ एडमिशन मतलब किसी में भी ले लो एडमिशन, साथ में लैंग्वेज कोर्स कर लो। अच्छा, फर्स्ट हो गया एजुकेशन, सेकंड हो गया आप लैंग्वेज कर लो, थर्ड ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस है 3 इयर्स 5 इयर्स, आप लिंक्डइन मेंटेन करो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो भी है आपकी स्किल्स बिल्ड करो। यू नीड कीप ट्राइंग, नॉट ओनली जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में काफी हाई स्किल चाहिए, बट इवेंचुअली आप ट्राई करोगे, ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि वी से रिग्रेट टू से दैट वी सेलेक्ट अनदर कैंडिडेट, और ठीक है चलेगा।
हाँ कोई बात ऑब्वियसली ट्राई करोगे, वही बात है, अप्लाई करोगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे तो कहाँ से हो जाएगा। नहीं। हाँ, बस वही है। चलो तो ऑन दैट नोट आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड, एक घंटे अपन ने बात कर ली इसके लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई नो ये वीकेंड है, उसमें से एक घंटा स्पेयर करना इट्स नॉट इजी, और वो भी एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, कि वो 2 दिन ऐसे चाहिए कि हाँ यार 2 दिन तो मैं सुकून से रहूं। थैंक यू इतना बिल्कुल टाइम बिल्कुल। निकालने के लिए, आपसे बात करके सच में अच्छा लगा। एनी थैंक यू सो मच। लर्निंग फॉर मी, एनी लेसन फॉर मी, एनी क्वेश्चन फॉर मी? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, आपके जो ये जो मार्केटिंग जो पोजीशंस है, कंपनीज है, तो कौन सी फील्ड की कंपनी है? जैसे आईटी है? यस, मैं जिसमें काम कर रहा हूँ आईटी कंपनी है, तो उसका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो अभी मैं धीरे धीरे हैंडल कर रहा हूँ। आई एम नॉट एन मार्केटिंग एक्सपर्ट, लाइक मैंने कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं किया। आई कम अच्छा। फ्रॉम एन बैकग्राउंड ऑफ, लाइक आई हैव डन बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, देन आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट, then I moved my career to IT, like in research. Then from research I joined this company as a research analyst. But even though the company management have good faith in me, so they want me to take over the marketing part as well. So these are the thing, little मतलब वही है, लर्निंग प्रोसेस अभी चल रहा है, मार्केटिंग में अभी धीरे 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 सीख रहा हूँ, उसी का एक पार्ट ये भी है। बढ़िया बढ़िया, नाइस। हम्म। So all the best for your YouTube channel and for your wishes, and have a nice weekend. चलो सेम टू यू सर। Yes. ठीक ओके, है, okay. Thank you. चलो बाय। बाय बाय, Bye. थैंक यू।